السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم البلاغہ کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ پچھلی کلاسوں میں تشبیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ سیکھیں گے تشبیہ کی 4 قسموں کے بارے میں۔ یہ چاروں قسمیں، ایک آتی ہے تشبیہ ملفوف۔ کیا آتی ہے؟ تشبیہ ملفوف، جیسا کہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھ ہی رہا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے تشبیہ مفروق۔ ٹھیک ہے، ایک ہے ملفوف، دوسری ہے مفروق، اور تیسری قسم تشبیہ کی ہے تشبیہ تسویہ، اور چوتھی قسم ہے تشبیہ جمع۔ آپ نیٹ جے آر ایف کے امتحان میں اگر بیٹھتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہے، اس میں اگر بلاغت کے سوال آتے ہیں تو آپ کو شعر دے دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ تشبیہ ملفوف ہے کہ تشبیہ مفروق ہے، یہ تشبیہ تسویہ ہے یا تشبیہ جمع ہے۔ اور یہ جو بحث آتی ہے، یہ جو ہے تشبیہ باعتبار اپنے طرفین کے۔ طرفین کے مطلب آپ سمجھتے ہیں، طرفین کا مطلب ہوتا ہے ایک مشبہ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بھی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے جو سلائیڈ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے، یہ نظام اکیڈمی 22، یہ آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے۔ جو بھی کلاس لی جاتی ہے اس کی پی ڈی ایف آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ویڈیو کی لنک بھی وہاں سے دستیاب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، کیونکہ بہت سے ایسے عربک بیک گراؤنڈ کے طلباء ہیں جو علم بلاغہ کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کی بلاغت مضبوط ہے، علم بلاغہ وہ جانتا ہے، تو قرآن و حدیث کی فصاحت و بلاغت کو صحیح سے سمجھ سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو عربی جانتے ہیں وہ بلاغت کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی علم بلاغہ میں مہارت حاصل کر سکیں۔ سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے سلائیڈ دکھ رہی ہے، اس کے عبارت میں پڑھتا ہوں کہ تشبیہ متعدد بمتعدد، یعنی متعدد چیزوں کی تشبیہ متعدد چیزوں سے۔ فَإِذَا تَعَدَّدَ الطَّرَفَانِ، پس جب دونوں طرفین کا مطلب ایک مشبہ ایک مشبہ بھی، دونوں اگر جب متعدد ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہوں۔ فرسٹ کیا ہے؟ الاول کیا ہے؟ ان یجمع کل فریق منہما، دونوں فریق میں سے ہر ایک، یعنی مشبہ میں سے ہر ایک جمع ہو جائے مع مثلہ، اپنے مثل کے ساتھ۔ مطلب آپ کو معلوم ہے کہ شعر کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شطر اول جس کو آپ مصرع کہتے ہیں، 2 مصرے مل کر کے ایک شعر بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مصرے میں، جس کو آپ شطر اول کہتے ہیں، مشبہ 2 مشبہ پہلے مصرے میں پائے جاتے ہیں اور 2 مشبہ بھی دوسرے مصرے میں، وہی کہتے ہیں ای المشبہ مع مشبہ، یعنی مشبہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے ایک مصرے میں، و مشبہ بھی مع مشبہ بھی، اور مشبہ بھی کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ جس شعر کی ایسی شکل آئے، جس شعر کی ایسی صورت بنے، اس کو ہم تشبیہ ملفوف کہتے ہیں۔ یعنی ایسی تشبیہ اگر کوئی شعر ہے، اس کے پہلے پارٹ میں 2 مشبہ جمع ہو جائیں اور ان دونوں کا مشبہ بھی شعر کے دوسرے پارٹ میں، یعنی دوسرے حصے میں، شطر ثانی میں، جس کو آپ کہتے ہیں دوسرے مصرے میں پائی جائے۔ آپ شعر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے
वज़ौ शुहूबी, शुहूबी ए शिहाब की जमा है। ज़ौ शुहूबी फ़ौक़ल लैलि बादिन, ज़ौ शुहूबी फ़ौक़ल लैलि बादिन का अतराफ़िल असिन्ना फ़िद्दुरूई, का अतराफ़िल असिन्ना फ़िद्दुरूई। ठीक है, तो ये क्या है, कहा जा रहा है ज़ौ शुहूबी, शुहूबी ये शिहाब सितारा एक होता है, ये सितारे का नाम है जो बहुत रोशन और चमकदार होता है। ठीक है, वज़ौ शुहूबी यानी शिहाब सितारे की रोशनी, ज़ौ मतलब ज़ौन जमा अज़ौ मतलब रोशनी, शिहाब सितारे की रोशनी फ़ौक़ल लैली रात के ऊपर यानी रात में, बादिन यानी ज़ाहिर होती है। शायर यहाँ जो है, क्योंकि आपको मालूम है अहले अरब के जो आशार होते हैं उसमें वो अपने जंग की तारीफ़ करते हैं, अपने तलवार की तारीफ़ करते हैं, इसी के साथ अपने नेज़ी की तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ शायर अपने नेज़ी की तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि उस दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो ज़माना देखेंगे, दौर जाहिलियत, उसमें हमेशा कत्ल व गारत होती रहती थी, एक कबीले की दूसरे कबीले से जंग होती रहती थी। तो शायर जो है अपने नेज़े की तारीफ़ कर रहा है, किसके, नेज़े की। ठीक है, क्या कह रहा है, वज़ौ शुहूबी फ़ौक़ल लैलि बादिन, यानी शिहाब सितारे की रोशनी रात में ज़ाहिर होती है, किस तरह लगती है, का अतराफ़िल असिन्ना, जैसा कि नेज़े के नोक की तरह, कब, फ़िद्दुरूई यानी ढाल में। ठीक है, अतराफ़ तरफ़ुन यानी जो किनारे वाला हिस्सा होता है यानी, और असिन्ना यानी नेज़ा, नेज़े की नोक की तरह। कहाँ, फ़िद्दुरूई, दुरूई जो ढाल होती है लोहे की बनी होती है, एकदम काली होती है। तो यहाँ किसकी तशबीह किससे दी जा रही, इसको देखें तो ज़ौ शुहूबी, शुहूबी यानी शिहाब सितारे को कहते हैं, इसकी तशबीह दी जा रही है अतराफ़िल असिन्ना यानी नेज़े के नोक की तरह। आपको मालूम है नेज़ा जब उसकी धार बहुत तेज़ होती है, बहुत चमकीला होता है, दुश्मन को जैसे वार किया जाए उसमें फ़ौरन ये घुस जाएगा अंदर। तो उस नेज़े की धार को उसने, उसकी तशबीह दी किसने, किसकी, ये जो आसमान के शिहाब सितारे से। ठीक है, फ़ौक़ल लैली, और रात की तशबीह दी गई, रात की तशबीह दी है किससे, दुरूई यानी ढाल से, क्योंकि जो लोहे की ढाल होती है जो सीने पे लगाते हैं जिससे दुश्मन वार करे ताकि चोट न लगे, उसके दिफा के लिए। और दुरूई, फिर दुरूई, दुरू मतलब होता है ढाल में। तो कहा जा रहा, तो हुना क़द जमा ज़ौ शुहूबी वल लैल, तो ज़ौ शुहूबी ये क्या है, मुशब्बा है, और लैली ये मुशब्बा है, दो दो मुशब्बा जमा, एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्या है, मुशब्बा हैं। दो मुशब्बा जमा हो गए कहाँ, एक मिसरे में। अब मुशब्बा भी ही, एक तो ए मुशब्बा भी ही है, एक ए मुशब्बा भी है, दो मुशब्बा भी ही जमा हो गए किसके, दूसरे मिसरे में। जहाँ भी ऐसी सूरत पाई जाती है उसको हम तशबीह मलफूफ कहते हैं। उम्मीद है कहीं भी कोई मिसाल आए, आपसे पूछा जाए कि तशबीह मलफूफ है मफरूक, आप फ़ौरन बता देंगे। ठीक है, वही कहा जा रहा है, वहुमा अलमुशब्बिहानी फ़िश्शत्रिल अव्वल, यानी पहले मिसरे में वो दोनों मुशब्बा हैं। व जमउ अतराफ़िल असिन्ना व दुरूर, और अतराफ़िल असिन्ना यानी नेज़े की नोक, और दुरू और ढाल का जमा होना। वहुमा अलमुशब्बा बिहिमा, यानी वो दोनों मुशब्बा बिही हैं फ़िश्शत्रि सानी। तो यहाँ क्या है, पहले सत्र में दो मुशब्बा, दूसरे सत्र में दोनों का मुशब्बा बिही। जिस तरह जहाँ भी किसी भी शेर में ऐसी सूरत पाई जाए उसको हम तशबीह मलफूफ कहेंगे। क्या कहेंगे, तशबीह मलफूफ। आगे चलते हैं, दूसरी किस्म हमने देखी थी, क्या थी, तशबीह मफरूक। तशबीह मफरूक किसको कहते हैं, कहा जा रहा है व इम्मा अन युजमा कुल्लु फरीक़िन मअ ज़िद्दिही, यानी आपको मालूम है शेर के दो पार्ट होते हैं, दो जुज़ होते हैं, पहला मिसरा दूसरा मिसरा।
पहले ही मिसरे में एक मुशब्बा बिही पाया जाए और दूसरे मिसरे में भी एक मुशब्बा बिही। जहाँ भी किसी शेर में ऐसी सूरत पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? तशबीह मफरूक कहेंगे। आप शेर देखिए क्या कहा है? बितुलूलिन, तुलूलिन मतलब खंडरात। आपको मालूम है लोग जंगलात का सफ़र करते थे तो अपने खंडरात यानी महबूबा से जहाँ मिला करते थे, खंडरात की तारीफ़ करता है शायद। बितुलूलिन, ऐसे खंडरात में, कअन्नहुन्ना, गोया कि वो खंडरात क्या है? नुजूमुन यानी सितारे की तरह चमकदार है। तो यहाँ तुलूलिन क्या है? ये आपका मुशब्बा है और नुजूमुन ये क्या है? मुशब्बा भी है। ठीक है, तो शेर के पहले जुज़ में एक मुशब्बा भी पाया जा रहा, दूसरे में फ़ी इराज़िन, ऐसे मैदान में। ठीक है, कअन्नहुन्ना लयालिन, गोया कि वो रात की तरह है। ठीक है, तो यहाँ मैदान यानी एराज़ क्या है? मुशब्बा है। इसके इस मुशब्बा भी किससे कह रहा है? लयाली से यानी रात से। तो मुशब्बा भी लयाली, तो पहले मिसरे में एक मुशब्बा भी, दूसरे मिसरे में एक मुशब्बा भी। जहाँ भी ऐसी सूरत पाई जाए उसको हम तशबीह मफरूक कहेंगे। क्या कहेंगे? तशबीह मफरूक। कहा फ़क़त जमा हुना अत्तिवाल यानी तुलूल मतलब वही खंडरात। तो यहाँ खंडरात जमा हो गए और ये मुशब्बा है। मान नुजूम के साथ वो क्या है? मुशब्बा भी है। वकज़ालिका जमउल एराज़ यानी मैदान जमा होगा किससे? माअल लयाली, यानी एराज़ की तशबीह दी जा रही किससे? लयाली के साथ। ठीक है, तशबीह मफरूक, तशबीह मलफूफ दोनों आपने सीख ली। अब आगे दूसरी तशबीह सीखते हैं, दूसरी किस्म देखते हैं। तशबीह तस्विया। तशबीह तस्विया किसको कहते हैं? कहते हैं तशबीह मुतअद्दिद बिमुफ़रद, यानी कहीं ऐसा हो कि मुशब्बा दो पाए जाएं और मुशब्बा भी एक पाया जाए। तशबीहुल मुतअद्दिद यानी मुशब्बा एक से ज़ायद दो पाया जाए, बिलमुफ़रद यानी मुशब्बा भी एक रहे, ऐसी सूरत को तशबीह तस्विया कहते हैं। क्या कहते हैं? तशबीह तस्विया। मिसाल देखिए, शेर देखिए। शायर कह रहा है सुदगुल हबीबी। सुदग का लफ्ज़ी माना आप देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा कनपटी, लेकिन सुदगुल हबीबी यानी महबूबा की जुल्फ़ें, यानी उसके बाल की खूबसूरती बयान कर रहा शेर कि सुदगुल हबीबी यानी मेरी महबूबा की जुल्फ़ें, व हाली और मेरी हालत यानी मेरी सिचुएशन, किलाहुमा दोनों को दोनों कैसे हैं? कल लयाली रात की तरह, यानी रात कैसी होती है? काली होती है। तो कहा सुदगुल हबीबी यानी मेरी महबूबा की जुल्फ़ें और मेरी हालत दोनों क्या हैं? दोनों स्याह हैं, यानी मेरी महबूबा इतनी खूबसूरत है, उसकी जुल्फ़ें तो एकदम काली काली दिखती हैं और मेरी हालत भी जो है काली है। क्यों? क्योंकि मेरी मुलाकात महबूबा से नहीं हो पा रही है। ठीक है, शेर का मतलब समझ गए? सुदगुल हबीबी व हाली किलाहुमा कल लयाली, दोनों रात की तरह हैं यानी दोनों काले हैं। ठीक है, तो यहाँ एक मुशब्बा, ठीक है, और ये दूसरा मुशब्बा, दोनों जमा हुए मुशब्बा भी एक के साथ। ठीक है, चलिए तशबीह तस्विया हो गया। आगे क्या है? तशबीह जमा। यहाँ क्या है? ये बिल्कुल तस्विया का उल्टा। क्या है? तशबीह मुफरद यानी मुशब्बा एक होगा, बिल मुतअद्दिद और मुशब्बा भी एक से ज़ायद होगा। जहाँ ऐसी सूरत पाई जाए उसको तशबीह जमा कहते हैं। मिसाल देखिए, शेर देखिए क्या कह रहा? मर्रत बिना यानी महबूबा मेरे पास से गुज़री, यानी वो हसीनाएँ मेरे पास से गुज़री। मर्रत बिना रादज़ुहा यानी दिन के चढ़े में, जब सूरज निकलने के बाद 10-11 बजता है यानी दिन पूरी तरह चढ़ता है यानी रोशन हो जाता है, उस टाइम को क्या कहते हैं? रादज़ुहा यानी चाश्त के बाद का वक्त।
मर्रत बिना रअद ज़ुहा, यानी महबूबा मेरे पास से गुज़री, ठीक है, यानी महबूबा ने वो हसीनाएँ मेरे पास से गुज़री, रअद ज़ुहा यानी ज़ुहा यानी दिन चढ़े हुए, यानी दिन चढ़े हुए, मर्रत बिना वो हसीनाएँ मेरे पास से गुज़री। अब उन हसीनाओं की तशबीह दे रहा है, यानी ये तो मुशब्बा हो गया। अब मुशब्बा भी इसकी तशबीह किससे दे रहा है? तहकी, यानी वो दोनों वो ज़ाहिर हो रही थी, यानी जो महबूबा यानी जो हसीनाएँ हो ज़ाहिर हो रही थी। कैसे? तहकी यानी वो हसीना, मर्रत बिना मेरे पास से गुज़री, अब चाहे महबूबा ले लें या हसीना ले लें। रअद ज़ुहा यानी चाश्त के वक्त, तहकी गज़ालता वो ज़ाहिर हो रही थी, गज़ाला यानी रोशन सूरज की तरह, जिस तरह सूरज चमकता है चम 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 चम, उसी तरह मेरी महबूबा भी अपने ज़ेवरात और अपने कपड़ों की वजह से सूरज की तरह चमक रही थी, ठीक है। मर्रत बिना रअद ज़ुहा तहकिल गज़ालता, गज़ाला मतलब होता है रोशन सूरज, तो महबूबा की तशबीह दी रोशन सूरज की। वल गज़ाला, गज़ाला मतलब होता है हिरनी, ठीक है। महबूबा गुज़री चाश के वक्त, ठीक है, वो ज़ाहिर हो रही थी रोशन सूरज की तरह और हिरनी की तरह, तो इसकी तशबीह रोशन सूरज से भी दिया और हिरनी से भी दिया। तो जहाँ ऐसी सूरत पाई जाए उसको हम तशबीह जमा कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने तशबीह की 4 किस्में पढ़ी हैं। एक तशबीह मलफूफ, एक तशबीह मफरूख, एक तशबीह तस्विया और एक तशबीह जमा। उम्मीद है कि अगर इम्तिहान में कहीं भी आपको कोई शेर दे दिया जाए और पूछा जाए कि तशबीह मलफूफ है कि तशबीह मफरूख है, तशबीह तस्विया है या जमा है, आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसी तरह कोई शेर पढ़ेंगे आप फ़ौरन अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कौन मुशब्बा है कौन मुशब्बा भी है, तो तशबीह मलफूफ मफरूक तस्विया जमा में से क्या है। आखिरी स्लाइड जो दिख रही है आपको, ये टेलीग्राम चैनल की, इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, इससे आपको PDF मिल सकती है, इसी के साथ वीडियो की लिंक भी दस्तयाब कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगले दिन नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा।